समझते हो क्या होती? कंवारी अनछुई हो रहे, और वो भी एक नहीं दो नहीं 72 हो रहे. There is something wrong in CBFC. And who are these people who are sitting on the chairs and making a mockery of CBFC? कौन सी कंट्री में ऐसा हो सकता है कि एक फॉरेनर आता है आपके सॉइल के ऊपर और आपके फिल्म मेकर को लताड़ कर जस्ट बिकॉज दैट फिल्म डजंट सूट योर एजेंडा. आपको अगर प्रॉब्लम लगता है तो आप अपने हिसाब से फिल्में बनाइए ना. Why are you demolishing or why are you demonizing our films which is raising serious issues? आप 75 हूरे बना लो, आप गुजरात स्टोरी बना लो, आप बनाओ ना जो आपको क्या बनाना है. अरे हम बनाए, हम पैसे हम खर्च करें, हम डिसाइड करें कब रिलीज करना है क्या नहीं करना है. हमारे लिए तो गंगा बहुत पवित्र है. Ashok and Sanjay, your 72 Hure is already in news. Not only in the news, there's great controversy. Even your trailer. What would you like to say? I mean, how can a trailer be controversial when the film has already been censored? I think it was quite a shock to all of us, for Sanjay, producer Gulab ji, all of us, that we never expected that the trailer will be rejected. There are two primary reasons. One is that the film has won a national award. Sanjay has got the Best Director's Award. So it's always a dream for any maker that he gets a national award. So national award is constituted by the Government of India, and it's a very big movement for any maker for that matter. So a film which has got a national award and then other awards at other places, at IFFI also it was recognized. You say that this film is worth giving a national award, and the film has got a national award, the maker has got a national award. So the content of that film is so good that the Government of India gives you an award. Now, when the trailer is made, the trailer is made of, comprises of the same visuals which are there in the film. Not a single frame is there in the trailer which is not there in the film. Right. So, as it is, when a film is given, trailer is given to you, you see everything is there, whatever was there in the film. You straight away give a certificate to it. There should be no discussions on that. So you give cuts and you say that a falana shot, which you must have seen in the film, where there is a leg, in a foreground. With the shoe. So they said remove that shot. Then they say there is a word called Quran in the film, you remove that shot. ये अज़ाब है हमारा, कुरान का अज़ाब, जिस पे हाथ रख के तूने कसम खाई कि तेरी जिंदगी का कोई मकसद होएगा जिहाद, ना तुझे अपनी जान अजीज होगी ना किसी और की. So why couldn't they see this when they certified the film? It is there in the film also. And then you give a national. I'm again and again underlining the word national award. It's got a national award, which means it's got the recognition it deserves. Yeah, so that's what I'm saying. So it was quite a shock to all of us, and we felt very humiliated. Sanjay felt very bad. Gulab Singh ji, all of us felt, yeah, this is not the way you treat a film or a filmmaker of that sort. So it went big. People started talking about it, and we got a clarification yesterday, which was quite funny, which said that your message which you have given to people is wrong. It's been misunderstood. We have not rejected your trailer. We have asked for some cuts, but we said this is exactly what we are saying. आप कहां ऐसे पकड़ो, बात तो एक ही है. आपने हमको सर्टिफिकेट नहीं दिए, आपने कहा कि आप ये कट्स दो, उसके बाद हम आपको सर्टिफिकेट देंगे. तो बात तो इसको रिफ्यूजल ही बोलते हैं ना, इसको रिजेक्शन ही बोलते हैं, इसको थोड़ी बोलते हैं कि आपने हमको सर्टिफिकेट दिया. सो दे वेंट it was utter confusion when they even gave a clarification. So people were actually laughing at her. So we have appealed, all of us, we have appealed to censor board, we have appealed to Prasun Joshi sahab, a dear friend of ours, that there is something wrong in CBFC. And who are these people who are sitting on the chairs and making a mockery of CBFC? Prasun Joshi has done a good job in CBFC. He has taken CBFC to a different level as far as modern technique is concerned and all those kind of things are concerned. But such things fails, destroys all the hard work
which you have done to take CBFC to a different So level. where do you think they went wrong? Because you think none of them, the film people who watched the trailer had not seen the film, they did not know what was in the film? I think that this is इस सवाल का जवाब तो वही दे सकते हैं ना. How do we answer this question, which they have done? They have taken a call. It's अगर एक film censor हो गई है, तो when you watch the trailer, surely you should know what the content of the film is before you can look at the trailer and pass your comment on it. Sanjay. इनफैक्ट मैम न सिर्फ मतलब ये शॉकिंग तो था ही, वो फ़नी भी है ये चीज़ कि जिस फिल्म को आप ऑलरेडी सर्टिफाई कर चुके हैं उसी के कुछ हिस्से जब एक ट्रेलर के अंदर इस्तेमाल होते हैं तो आपको उसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशंस चाहिए. मुझे ये बात समझ में नहीं आती कि वो फिल्म ऑलरेडी सर्टिफाइड हो चुकी है. अगर ऑब्जेक्शनेबल चीज़ें हैं तो वो फिल्म के अंदर भी होंगी, तो आप इसके अंदर उनको निकालने की बातें क्यों कर रहे हैं, या वर्ड को म्यूट कर दीजिए, शॉट को डिलीट कर दीजिए, इन सब चीज़ों को. और जिस मैनर में, ऐसा नहीं है कि हम अकेले ही हैं जो ये फेस करते होंगे, और भी बहुत सारे लोग होंगे. आप इंतज़ार करते हैं 10 दिन 9 दिन आपको मिलते हैं, और आपको जब मालूम है कि अगले दिन आप अपना ट्रेलर रिलीज़ करने वाले हैं, क्योंकि फिल्म 7 तारीख को रिलीज़ होने वाली है. अब 7 तारीख को रिलीज़ होगी तो आप 8-10 दिन पहले तो मिनिमम करेंगे ही ना ट्रेलर रिलीज़. हम लोग तो कोशिश कर रहे हैं, 18th को अप्लाई किया जिसमें वो 19th को बात कर रहे हैं, स्क्रीनिंग हुई या वटेवर, जो भी टेक्निकल प्रोसेस है मुझे नहीं पता उसके बारे में. और एक दिन पहले आप ये बोलते हैं कि आप ये चीज़ें निकाल दीजिए. मैम आप जानती हैं ये क्रिएटिव प्रोसेस है, इसमें समय लगता है. एक ट्रेलर के अंदर एक एक शॉट को डिसाइड करने में, उसके साउंड को डिज़ाइन करने में, बैकग्राउंड, ये सब चीज़ें, ये क्रिएटिव प्रोसेस है, इसको समझना चाहिए. ये यूँ नहीं होता है कि आप बता देते हैं सडनली और एक दिन में हो जाता है. आपको रिप्लेसमेंट सोचने के लिए, या आपको वो क्यों कहना है. और फिर यहाँ पर हम एक इम्पॉर्टेंट बात कि फिल्म ऑलरेडी सर्टिफाइड है, ये बात तो हम भी बोल रहे हैं, ये पहले से कह रहे हैं इस चीज़ को, तो फिर आप ट्रेलर के ऊपर आपत्ति क्यों कर रहे हैं उन शॉट्स के अंदर. तो बहुत अजीब सी बात है. मुझे लगता है कि इन चीज़ों को बेहतर तरीके से हैंडल करना चाहिए, क्योंकि जब फिल्म रिलीज़ होती है तो हम लोग बहुत सारी ऑलरेडी और बहुत कुछ चीज़ों से गुजर रहे होते हैं, उसके अंदर ये और चीज़ें ऐड कर दी जाती हैं. तो थोड़ा बेहतर हैंडल करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा. So when it was censored, उस वक्त किसी ने ऑब्जेक्शन दिया था सेंसर बोर्ड ने? नहीं, देखिए जो प्रोसेस होता है सेंसर का, उसके तहत उन लोगों ने कुछ कट्स बोले और उसका कहा कि ये कट्स आपको देंगे, उसके बाद हम आपको ए सर्टिफिकेट देंगे. हमने वो कट एक्सेप्ट किए और उनको उसके बेसिस पर उन्होंने हमारे को ए सर्टिफाइड किया. अब सडनली ऑलरेडी कट्स तो आप ले चुके थे फिल्म के अंदर, अब क्या बदल गया उसके अंदर कि आपको ट्रेलर में भी कट्स चाहिए जो उसी फिल्म से लिए गए हैं. तो ये एक very funny. It is very strange. You know, there is this whole talk going on कि ये नई पिक्चर नहीं है, क्योंकि this is all, you have already won a national award for it as best director and it has already gone to IFFI. So what is this whole, I didn't understand. देखिए मैम, मुझे लगता है फिल्म है, नई फिल्म है, what is it? जब तक फिल्म रिलीज नहीं होती फिल्म नई है, ठीक है. अब वो किस ईयर में अवार्ड जीती या किस ईयर में नहीं, बहुत प्रोसेस होते हैं आपके जिसके अंदर आप प्लानिंग करते हैं. बिकॉज फिल्म बनाना जितना बड़ा चैलेंज है, उसको रिलीज़ करना उससे भी कहीं ज़्यादा बड़ा है. अब स्पेशली इस तरीके का जब आप बोल्ड कॉन्सेप्ट के ऊपर आप कुछ अलग चीज़ करने की, संजीदा चीज़ों को टच करते हैं, तो आपको हर क्वार्टर से बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है. कन्वेंशनल वे में स्टूडियोज़ और लोग आपके लिए सपोर्ट में खड़े नहीं होते हैं, तो आपके अपने चैलेंजेस होते हैं, तो वक्त लगता है आपको. जब हम तैयार थे इस चीज़ के लिए, जिस वक्त ये फिल्म तैयार थी और जब ये अवार्ड तो इसको जो मिले हैं, कोविड टाइम चल रहा था और वो थिएटर में लोग आने वाले नहीं थे. अब ये ऐसी फिल्म है क्या 2020? जी, ये उस वक्त इस इफ़ी के अंदर ये फिल्म थी और हम 2020 में आने वाले थे, लेकिन वो कोविड की वजह से फिर ये डिले हुआ, फिर और रीजंस बनते चले गए. और फिर देखिए हर चीज़ का एक, और जब तक हमने फिल्म, और अगर हम चाहते तो हम OTT को ये फिल्म दे सकते थे, लेकिन ये मेरी ज़िद थी. मैं चाहता था कि ये फिल्म थिएटर के ऊपर आए, और अनफॉर्चुनेटली CBSC ने ट्रेलर कोई थिएटर पे नहीं आने दिया, जो हमारे लिए मतलब हम जिस चीज़ के लिए, बिकॉज लुक्रेटिव ऑफर्स आती हैं आपके पास में OTT से, जिसको रिफ्यूज़ करते रहे. ये प्रोड्यूसर्स के लिए एक बड़ी चीज़ होती है, मगर उसके बावजूद वो बिलीव करते थे इसके अंदर कि ये बड़ी स्क्रीन का एक्सपीरियंस है. तो यहाँ तक ये बात है कि जब तक फिल्म नहीं आई है, मुझे लगता है कि फिल्म नहीं होती, और ये किसी को भी लगेगा, बिकॉज आपने जब देखा ही नहीं है उसको, तो आप पहली बार देखेंगे तो वो नहीं है. इस अवार्ड्स की डेट या सेंसर सर्टिफिकेट की डेट से फिल्म नई और पुरानी नहीं हो जाती है.
वो क्राइटेरिया हो सकता है किसी अवार्ड फंक्शन के लिए। Well, this is very topical for sure. Yeah. Because आप पता नहीं 2020, 2019, I don't know if it was that topical, लेकिन आज तो बहुत topical है। तो शायद everything happens for the best. Yeah, correct. Isn't it? Destiny plays its own role. Destiny plays its own role, and everything happens for the best. Also, timing has to be right. Yeah, correct. Absolutely. Nobody wants to delay the film. It happens, as Sanjay said, it's a very tiring job to make a film then get it released, especially a film which is a very small film, which is made on a very low budget, without any backing, without any support. The producer has gone all out to support this film, and a film which is a very difficult film, a film which is on a very thin line. Yes. You know, It's called Islamophobic. It is already, people have already been started saying it. They say this is part of, it's like a trilogy. You just had Kashmir Files, you just had the Kerala Story, and now 72 Hure. ये सब एक ही तरह की फिल्में हैं, propaganda films है, Islamophobic है. What do you say about it? देखिए मैम, मुझे प्रोपेगेंडा करने के लिए फिल्म बनाने की ज़रूरत नहीं है, इतनी प्लानिंग करके इतने टाइम से उसको ये करने की। ये एक, हम बहुत जल्दी चीज़ों को डिस्कार्ड कर देते हैं, उनको कैटेगराइज कर देते हैं, उनको नाम देने लगते हैं। कभी हम ये सोचते नहीं हैं कि ये किस तरीके की बातें कही जा रही हैं, कितने संजीदा विषय के ऊपर ये फिल्म बनाई जा रही है। टेररिज्म हमारे इस सब कॉन्टिनेंट के अंदर हम लोगों ने सबसे ज़्यादा सफ़र किया है, और मैं बात सिर्फ इंडिया की नहीं कर रहा हूँ। जिन लोगों ने हिंदुस्तान के अंदर इसका बढ़ावा दिया, उन लोगों के ऊपर भी टेररिज्म ने अपना एक असर दिखाया। यूरोप के अंदर, इवन अमेरिका के अंदर टेररिज्म कितनी चीज़ें होती हैं। आप कैसे इस चीज़ को ये बोल सकते हैं, अगर आप उसकी बात कर रहे हैं कि आप प्रोपेगेंडा फिल्म बना रहे हैं? लोगों ने जाने दी हैं इसके लिए। हम मुंबई के अंदर रहते हैं, हमने मुंबई में ही 2006 के ट्रेन ब्लास्ट हों, 2008 के अंदर ताज के इंसिडेंट्स हो, हमने क्या कुछ देखा है। तो ये बात को सिरे से खारिज कर देना कि या इस तरीके से डिमीन करना किसी के क्रिएटिव वर्क को विदाउट इवन फिल्म को देखे हुए, आप एटलीस्ट आप अपना जो भी ओपिनियन रखते हैं, आपका हक है, आप चाहें तो उसे पसंद करें, चाहें तो आप उसे नकार दें, लेकिन कम से कम आप उसको देखने के बाद ये बात कहें। उससे पहले सिर्फ नाम के ऊपर, इवन ये बात तो शायद जब डिजिटल पोस्टर आया था, टीज़र आया था, उसी के ऊपर कहीं जाने शुरू हो गई थी। ट्रेलर तो बहुत बाद में आया है। तो अब मैं किसी के सोचने के तरीके को कंट्रोल नहीं कर सकता। मैंने बहुत ईमानदारी से, ऑनेस्टी से एक संजीदा विषय कुछ हुआ है और एक अलग नज़रिए से उसको देखने की कोशिश की है, और मैं चाहता हूं कि लोग उसको उसी अंदाज में देखें और उसी के ऊपर उसकी बात करें। And Bharti, it's very important to understand who are these people who call it a propaganda film? ये कौन सा तबका है, कौन है ये लोग जो इसको प्रोपेगेंडा फिल्म बोलते हैं या इस्लामोफोबिया बोलते हैं? ये वो लोग हैं जिन्होंने शुरू से एक तरह की फिल्मों को सपोर्ट किया हुआ है और एक एजेंडा चलाया है इस देश में, चाहे वो फिल्म क्रिटिक हो, चाहे वो फिल्म रिव्यूअर हो, चाहे वो एक कम्युनिस्ट हो, चाहे वो किसी एक फेथ में बिलीव करने वाला आदमी हो। इन लोगों ने एक एजेंडा चलाया देश में और इनके एजेंडा के सामने कोई चीज़ें सामने नहीं आई थी आज तक। तो आज कुछ फिल्में जो बननी शुरू हुई हैं और जिसका एक्सेप्टेंस लार्जर लेवल पे हुआ है, दे फेल्ट डिस्ट्रॉयड, दे फेल्ट फ्रस्ट्रेटेड, दे फेल्ट कि यार हमारा जो एजेंडा है, हमारी जो थिंकिंग है, या हमारा जो एक बोलने का तरीका होता था, हमारी जो सोच थी, उसको ख़त्म कर दिया इन्होंने। चाहे वो कश्मीर फाइल हो, चाहे वो केरला स्टोरी हो, चाहे वो 72 हो रहे हों। सो दिस इज आउट ऑफ इनसिक्योरिटी दे कॉल इट ए प्रोपेगेंडा। आप इतने कमज़ोर हैं कि ये सेंसर पे मैं वापस आता हूँ कि INB मिनिस्ट्री ऑर्गेनाइज करती है IFI। अब देखिए इनकी पकड़ कितनी कमाल की है। ये जो अर्बन नक्सल्स जो हैं, ये जो वाइट कॉलर्ड टेररिस्ट जो हमारे कंट्री में घूम रहे हैं, इन एवरी फॉर्म, वेदर ही कैन बी अ फॉर्म ऑफ अ पेंटर, एन आर्टिस्ट, प्रोफेसर, पॉलिटिशियन और अ फिल्म क्रिटिक। हम फिल्म क्रिटिक पे ही हम ध्यान देते हैं। उसने, ये पूरी गैंग ने ये सारी फिल्मों को रिव्यू नहीं किया। अगर आप अपने आप को क्रिटिक बोलते हो और आप अपने आप को रिव्यूअर बोलते हो, तो आप कहिए फिल्म बुरी है, आप रिव्यू नहीं करते हो। इससे आप, ये तीनों फिल्मों ने, अभी ये फिल्म ने भी, ये करेगी भी, आई नो दिस पीपल आर नॉट गोइंग टू रिव्यू दिस फिल्म आल्सो, इनको एक्सपोज कर दिया है। सो दे स्टैंड एक्सपोज टुडे। IFI एक सरकारी महकमा ऑर्गेनाइज करता है। इनका नेटवर्क देखिए क्या कमाल है कि वहाँ पर एक अंग्रेज़ आता है, वो चेयरमैन है जूरी का,
वो आकर आपके फिल्म मेकर को गाली देकर, उसके अगेंस्ट बात कर, उसको डिस्ट्रॉय करके निकल जाता है। तो इंक्वायरी हुई उसके बारे में, कौन लाया इसको, इसका बैकग्राउंड किसी ने चेक किया क्या? कौन सी कंट्री में ऐसा हो सकता है कि एक फॉरेनर आता है आपके सॉइल के ऊपर और आपके फिल्म मेकर को लताड़ कर, जस्ट बिकॉज दैट फिल्म डजंट सूट योर एजेंडा। 72 उरे इज नॉट सूटिंग योर एजेंडा, द एजेंडा विच यू रन। तो प्रोपेगेंडिस्ट तो ये लोग हैं। हम तो अच्छी अच्छी फिल्मों की तारीफ करते हैं, संजय अच्छी फिल्म की तारीफ करता है, मैं अच्छी फिल्मों की तारीफ करता है। हमारे में फिल्मों को देखने का नजरिया एजेंडा नहीं है। A good film is a good film, a bad film is a bad film. For me, a good film might be a bad film. For you, a bad film might be a good film. हर आदमी का अपना तरीका है। सो ये जो एजेंडाधारी लोग हैं, ये एजेंडाधारी लोगों ने अलग अलग रूप में, अलग अलग मास्क पहन के हमारी कंट्री में एक एजेंडा चलाया हुआ है। अब इसकी फिल्म 72 उरे आ रही है, अभी आगे भी फिल्में बनेंगी, आगे भी फिल्में आएंगी। जो ये पूरी एक जो कैंसर है हमारी कंट्री में, चाहे वो टेररिज्म हो, चाहे वो कन्वर्शन हो, चाहे वो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हो। अभी यूसीसी आ रहा है तो उसमें भी फिल्में बनेंगी। इन चीज़ों को एक्सपोज करने के लिए जो फिल्में बनेंगी। आपको अगर प्रॉब्लम लगता है तो आप अपने हिसाब से फिल्में बनाइए ना। वाई आर यू डिमोलिशिंग और वाई आर यू डिमोनाइजिंग आवर फिल्म्स विच इज रेजिंग सीरियस इश्यूज? So main reason why they are calling it a propaganda, why they are calling it a film which is not a film at all. This is the length to that length they are going, is because these films has exposed them and they stand exposed today. So does 72 Hure, does it fall into the same category as Kashmir Files and Kerala Story? Does it come into the same category of telling a story from another point of view? सी ये एक यूनिक पर्सपेक्टिव की कहानी है मैम। टेररिज्म के ऊपर पहले भी बहुत सारी फिल्म बनती रही हैं, या तो वो विक्टिम्स के पर्सपेक्टिव से रही हैं या इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज़ के पर्सपेक्टिव से रही हैं। ये पहली बार उस नज़रिए से हैं जो लोग इसे अंजाम देते हैं, वो लोग जो ट्रेंड करते हैं, ब्रेन वॉश करते हैं, और वो लोग जो इसे एग्जीक्यूट करते हैं। ये नज़रिया मुझे लगता है कि इससे पहले सिनेमा वर्ल्ड के अंदर एक्सप्लोर नहीं हुआ है। ये एक यूनिक बात है। ये उस कैटेगरी में आती है या नहीं, मुझे लगता है कि ये एक यूनिक पर्सपेक्टिव है। हाँ, लोग इसको कैटेगरीज ऑलरेडी देना स्टार्ट कर चुके हैं जिसके ऊपर मेरा कोई कंट्रोल नहीं है, पर मैंने इसको एक बहुत डिफरेंट नज़रिए से देखा था और वही उसी तरीके से मैंने इसको बनाने की कोशिश की है। और मेरी पूरी ऑनेस्ट एक कोशिश थी कि जिस इंटेंशन के साथ में मैंने इसको शुरू किया है वो मैं फाइनली अचीव करूं, और मुझे लगता है कि मैं उसमें कामयाब रहा हूं। Why 72 Hure? आपने ये सब्जेक्ट ही क्यों चुना? मतलब एज अ फिल्म मेकर मैम, जब स्पेशली वो लोग जो स्मॉल टाउन से आते हैं, हम सिनेमा देखकर ही इस शहर की तरफ आते हैं। मेरी भी वैसी ही कहानी है। आप बहुत अलग अलग स्टोरी बोलना चाहते हैं, मैं अलग अलग तरह की फिल्में करना चाहता हूँ। मैंने जो भी काम किया है वो एक अलग नज़रिए से करना चाहता हूँ। ये मौका मिला था मुझे टेररिज्म के बारे में बात करने की, और वो भी एक बहुत यूनिक पर्सपेक्टिव के साथ में, और इस मौके को मैं छोड़ना नहीं चाहता था। अगर आप बहुत पैशनेट है अपने काम को लेके, तो अपने जीवन में कितनी फिल्म आप बना पाते हैं जो जिस तरीके की चीज़ें हैं। मुझे लगता है कि अगर ये कहानी मैं कह पाता तो, और स्पेशली जिस दौरान मैं इसके बारे में सोच रहा था और इस पर काम कर रहा था, मैं बहुत अलग अलग किस्म की फिल्मों के ऊपर काम कर रहा था। उसी दौरान मैंने ये चीज़ कही थी, मैं हमेशा जो भी फिल्म करना चाहता हूँ उसके पीछे एक वजह होती है कि क्या ये वो कहानी है जिसके साथ में मैं अपनी ज़िंदगी का कुछ हिस्सा देना चाहूँगा। ये उस कैटेगरी में आती थी और मुझे लगा कि मुझे ये फिल्म बोलनी है। मैं नहीं बोलूँगा, मुझे नहीं लगता था कि कोई और इस कहानी को कहेगा, तो इसके लिए ये बहुत ज़रूरी था कि मैं इस पर काम करूं। मैं हर फिल्म जिसको भी मैं करना चाहता हूं, मैं बहुत सोचता हूं उसके बारे में कि इसमें जो मुश्किलें आएंगी, जो चैलेंजेस होंगे, क्या ये वर्थ है। और मुझे लगा है कि ये उन सारे जोखिम, उन सारे चैलेंजेस के लिए ये कहानी थी कि उन सबको लेते हुए इसे कहना चाहिए था। आप जब when you talk about looking at unique subjects, जी 83 भी आपकी सब्जेक्ट थी ना? जी जो अभी आई जी कबीर खान making it. That was I've heard that you were supposed to have made that film, that it was your idea, that was your concept. You had approached Kapil Dev. The whole thing was yours. How did it slip from your hands and go elsewhere?
ये मैम क्या होता है जब बड़े फिल्म मेकर्स आते हैं तो एक श्योरिटी होती है प्रोड्यूसर्स के पास में, ज़्यादा प्रॉफिटेबल होती है। तो आई थिंक ये एक बिजनेस इसके पीछे सबसे बड़ी वजह रही है कि बड़े डायरेक्टर्स जब मिल जाते हैं, बड़े स्टार्स होते हैं, तो वो सोचने का तरीका अलग होता है। हो सकता है कि मार्केट वैल्यू भी इस सब चीज़ के अंदर मैटर करती हो, जो एज अ क्रिएटर हम उन सब चीज़ों को नहीं सोचते, मगर प्रोड्यूसर्स और जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये एक्सपेंसिव बिजनेस है। स्क्रिप्ट वो मेरी रही है और मैं उसे डायरेक्ट नहीं कर पाया, ये अब पास्ट की बात हो चुकी है। But did you get the credit for the script? जी, and I won IFA also for best story. So But आपके screenplay में did you have all that outpost of Pakistan? They are celebrating and they are allowing the World Cup to be watched by the Indian audience. मैम वो सब बातें थी आपकी स्क्रिप्ट में? देखिए मैं हर एक फिल्म मेकर जब एक डायरेक्टर जब एक स्क्रिप्ट के ऊपर काम करता है तो उस जो मेरा मटेरियल था उसके ऊपर फिर जब डायरेक्टर ऑन बोर्ड आए उनका अपना एक नज़रिया है और उन्होंने अपने तरीके से उसको क्योंकि वो उसके अंदर को राइटर भी हैं इस मटेरियल में, तो उन्होंने अपने नज़रिए से उसके अंदर जो चीज़ें की, क्योंकि मैंने फिल्म देखी नहीं है तो मैं आपने देखी? नहीं, मैं नहीं देख पाया उस वक्त। मैं कहीं और ट्रैवल कर रहा था और ये चीज़ें हुई और बाद में मुझे मौका नहीं मिला। मैं इनफैक्ट अपनी फ़िल्म की भी जो भी मैं करता हूँ या लिखता हूँ वो मुझसे वापस पढ़ी नहीं जाती हैं और मैं देखता बहुत मुश्किल होती है मुझे देखने में। So diplomatically आप कह रहे हैं कि what you wrote is not what was shown in the film. मैम सिंस all कि of मैंने पिक्चर ही नहीं देखी है तो उसके कौन से You must have पोर्शन heard about it. जी मैम इनफैक्ट मतलब जो भी क्योंकि बहुत सारे लोगों ने वो मटेरियल नहीं पढ़ा है जो मैंने लिखा था, ये उसी से इवॉल्व होके निकला है और तो मेरे लिए थोड़ा सा अभी कह पाना कि उस चीज़ के लिए मुश्किल है, बट But were you वो hurt? बहुत काबिल Were you hurt when 83 went out of your hands? Because you must have lived with it for a long time. मैम मैंने अपनी ज़िंदगी के 6 साल दिए थे उस फिल्म को और बहुत लंबा वक्त जब उसके ऊपर काम करने के लिए। मेरे लिए फ़िल्म सिर्फ फिल्म नहीं होती है, मैं उनको जीता हूँ। तो कोई भी चीज़ जब आप नहीं कर पाते हो और जिसके लिए आप बहुत पैशनेट होते हो वो आपको दुख तो बहुत होता है। मेरे लिए पता नहीं आपको ये बात बहुत अजीब लगेगी, लेकिन जब मैं किसी स्क्रिप्ट के अंदर इतना इमर्स्ड होता हूँ, इतना इन्वॉल्व होता हूँ, तो जब मैं सोता भी हूँ तो मेरे किरदार मेरे आसपास होते हैं, मैं उनको देख रहा होता हूँ। मेरे लिए वो सिर्फ एक फ़िल्म नहीं बची होती, उसको उस ईमानदारी से कहना ही मेरे लिए सब कुछ होता है, वो कुछ और बन जाती है। इसी पागलपन से मैं फ़िल्म को देखता हूँ, बट धीरे धीरे मुझे ये रियलाइज़ हो रहा है कि शायद इतने पैशन की ज़रूरत नहीं होती है इस हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के अंदर। But Pawan Malhotra and Bashir must have been rumorifying around you for so many years. लेकिन मैं Amir Bashir and Pawan Malhotra, ये तो they are the two main people in your जी film. दोनों बहुत ही अच्छे इंसान हैं और कमाल, मतलब मैं उनके बारे में क्या ही बोलूं। दोनों ने अपने आप को बार बार प्रूव किया है और इस को लेके वो पैशनेट थे और उन्होंने अपना 200% दिया है इस फिल्म के अंदर। बिलीव करते थे वो डे वन से। इनफैक्ट पवन जी तो 3 सेकंड के अंदर उन्होंने ये डिसाइड कर लिया था कि वो फिल्म कर रहे हैं। हमने अल्लाह की रज़ा के लिए जान दी है, शहीद हुए हम। तुम वो खुश नसीब हो जिसे अल्लाह ताला ने इस इनाम के लिए चुना है। सो हमेशा मुझे ये लगता था कि क्या मैं उनकी उम्मीदों पर खरा उतर पाऊँगा, जिस तरीके से उन्होंने सपोर्ट किया है, सरेंडर किया है अपने आप को इतने सीज़न और ये होते हुए। तो मैं लकी था कि मेरे इस फिल्म के अंदर इस तरीके के, और न जस्ट सिर्फ एक्टर्स बल्कि क्रू, सब ने अपना 200% दिया है। चैलेंजेस बहुत थे इस फिल्म के अंदर। Amir Bashir did not have a problem doing a film called 72, right? मुझे लगता है मैम कि कोई भी सेंसिबल शख्स जो है उसको प्रॉब्लम नहीं होगी, बिकॉज आप एक प्रॉब्लम की तो बात कर रहे हैं और उस कोई भी प्रॉब्लम को सबसे पहले सॉल्व करने के लिए, उसको एड्रेस करने के लिए, उसको समझने, एक्सेप्ट करने की ज़रूरत होती है। तो जो भी सेंसिबल होगा वो इसके बारे में कोई परेशानी नहीं होगी। And you said that you live with your films, like you lived with 83 for 6 years.
तो आप 72 हीरो के साथ कितने साल? मैम कोई भी फिल्म बनने से पहले उसकी एक अलग कहानी होती है। जब आपके वो पहला जम आता है, आप उसके ऊपर काम शुरू करते हैं और आप फिर इस उम्मीद में कि कौन उसे बैक करेगा ढूंढने निकलते हैं। उससे हम तो सिर्फ फिल्म को कुछ घंटों में देख लेते हैं, लेकिन उसके पीछे कुछ लोग होते हैं जो सालों से उस चीज़ को जी रहे होते हैं। मुझे एक बहुत बड़े फिल्म स्टार हैं, उन्होंने एक बार ये कहा था जो लाइफ चेंजिंग चीज़ थी कि तेरे पास में बहुत सारी कहानियाँ हैं, लेकिन अपनी ज़िंदगी में डिसाइड कर ले कि हर फिल्म तो तू बना नहीं पाएगा जिस पेस पे काम कर रहा है, तो कौन सी फिल्में कहनी है उनको अपने पास रख ले और बाकी देना शुरू कर दे। चंद कहानियाँ होती हैं जो आपको कभी छोड़ती नहीं हैं। मैं उम्मीद करूँगा कि अब 6 तारीख की शाम को ये फिल्म मुझे छोड़ दे, बिकॉज़ सालों निकाले हैं मैंने इसके साथ में, आइडिया से लेकर इसके एग्जीक्यूशन तक एक लंबा अरसा होता है। तो वो खुशनसीब हो जिसे अल्लाह ताला ने इस इनाम के लिए चुना है, और तुमने जो नेकी का और जिहाद का रास्ता चुना है, वो रास्ता तुम लोगों को सीधा जन्नत में लेकर जाएगा। What are you expecting from the film, Ashok and Sanjay? 7th July. What are you expecting? Are you expecting protests? Are you expecting acceptance? What are you expecting? See, we are positive people, so we'll definitely expect positivity around and support from people. We definitely want people to go in great numbers to watch the film, applaud the film, and give us a pat on our back, saying yes, you people have made a good film. And Sanjay, after this release of the film, signs a 1,000 crore film. And the day we were expecting that the day comes that he stops picking up our calls and responding to us. That's what we are wishing, because that will be a great day. That will be the day when we feel, yes, fine, a friend of ours has once again become a big Ashok, maker. how did you come on board? See, I've been with Sanjay and with this project right from beginning. Oh, you've known about it for a while. Yeah, of course. We have been working together on this and all that. And because the film was being made and all that, so we're all part of it right from day one, right from beginning. हमने इसके बारे में ज़्यादा बातें नहीं की थी, उतना ही था, because we wanted to talk about it at the right time, when the date of the release is announced, and when it will see the light of the day, only then we will go all out and start batting in public and in the open. So the time has come. That's why we started talking about it. Just a few weeks ago you came out with it. हाँ, हम बहुत सारी चीजें अचानक भी होनी चाहिए ना. But there is the feeling that बहती गंगा में हाथ धोना, कि ये कश्मीर फिल्म चल गई, केरला स्टोरी चल गई, तो चलो अपना भी लगा लो. नहीं, There is a feeling कि ये भी ऐसे. वो फीलिंग वालों के लिए कदर नहीं करते, कह रहे हैं ये वही लोग हैं ना, जिनको एक्सपोज किया गया है, जो लोग इनसिक्योर हो गए इस कंट्री में, ये वही लोग हैं. अरे भाई, फिल्म तो हमने बनाई है, हम कब रिलीज करें क्या नहीं करें, वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारा डिसीजन है ना. आप कौन हमको बोलने वाले कि आपने ये पिक्चर तो इनसे पहले बनी हुई है. केरला स्टूडियो कश्मीर फाइल के पहली बनी हुई फिल्म है. सो देयर इज नो कंपटीशन. तो आप 75 हूरे बना लो, आप गुजरात स्टोरी बना लो, आप बनाओ ना जो आपको क्या बनाना है. अरे हम बनाए, हम पैसे हम खर्च करें, हम डिसाइड करें कब रिलीज करना है क्या नहीं करना है. हमारे लिए तो गंगा बहुत पवित्र है, तो बहती गंगा में तो हमको हाथ धोना आता है और हम धोते भी हैं. बहती गंगा में धोते थे, गंगा कभी स्टैटिक नहीं होती. सो दीज थिंग्स डोंट मैटर फॉर अस एक्चुअली. अल्टीमेटली यू सी people flocking into the theatres, appreciating the film is what every maker, every producer, every director, every technician waits for that only. आप लोगों ने आपके फिल्म को सराहा है, अच्छा कहा है, लोगों के सपने वही होते हैं. मेकर सक्सेसफुल अपने आप को तब फील करता है जब लोग उसको सराहते हैं. तो ऐसा नहीं कि माहौल ठीक है इसलिए लगा लो. माहौल तो हर वक्त अच्छा ही रहा है देश का. माहौल तो खास करके 2014 के बाद और अच्छा हो गया माहौल देश का. सो माहौल इज नॉट एन इशू. एज संजय सेड, हर फिल्म का टाइम होता है, हर फिल्म की डेस्टिनी होती है. हो सकता है कि ये फिल्म 3 साल पहले भी रिलीज होती, 2 साल पहले भी रिलीज होती. एवरी फिल्म इज डेस्टिन्ड, और लेट अस स्टार्ट बिलीविंग इन डेस्टिनी. हर चीज़ का हम बोलते हैं ना कि भैया
टाइम लिखा होता है, वक्त जब आता है तभी चीज़ें होती हैं। हर आदमी कोशिश करता रहता है, लेकिन ऊपर वाला जो है उसको उसने डेट लिखी हुई कि इसी तारीख को आने वाली है। सो वी आर बिलीवर्स इन गॉड, वी आर बिलीवर्स इन डेस्टिनी। So we don't go against the wishes of God, we don't go against the wishes of destiny. Every time is the right time for everything for that matter. So आप जब पैदा भी होते हो तो आप थोड़ी बोलोगे कि यार वो गंगा में हाथ धो रहे तो चलो बच्चे पैदा हो रहे तुम भी पैदा हो गए, ऐसा तो होता नहीं है। Everybody has a destiny, everybody has a time, Bharti. Just one last question. I just want to ask you, Sanjay, in the film, because 72 Hooray is obviously about the brainwashing that goes on before a suicide bomber takes on the mission. But have you done any monkey balancing? मैम Because that's what some of them do. देखिए ये मुझे लगता है कि इस डॉक्ट्रिन के ऊपर जो इस्लामिक टेररिज्म के अंदर जो एक सबसे बड़ा फैक्टर होता है, जो कहीं पर फ़िदायीन जो होते हैं जिनको समझाया जाता है, उसको उसी अंदाज में कहने की कोशिश की है। अगर ये मैं उस तरीके से ना किसी को प्लीज़ करने के लिए कुछ कहना चाहता हूँ, ना किसी को नाराज़ करने के लिए, मैं जो जिस चीज़ को बोलना चाहता हूँ मैं उसको उसी अंदाज में कहता हूँ। मैंने फ़िल्म के अंदर अपने तेवर को इंटैक्ट रखा है। मैं अगर ऐसा सब कुछ करना होता तो शायद मैं ये सब्जेक्ट नहीं चुनता, लेकिन इसके मैं हमेशा से बोल रहा हूँ कि फ़िल्म किसी को टारगेट करने के लिए नहीं है, लेकिन जिन शब्दों में इस बात को कहा जा सकता है उन्हीं का इस्तेमाल किया है उसी तरीके से। शहादत का जाम पीकर जब जन्नत में आंखें खोलोगे तो अपने आप को हूरों की आगोश में पाओगे। So all the best to both of you. Thank you, Bharti. National award तो already आ गया है. Now let's see what the box office reward. Let the Oscar also come in now. All the best to both of you. Thank you, Bharti. Thank you. It's always a pleasure to talk to you.